ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਯਾਮਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਯਾਮਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ 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 ਨੀ તમામ મારા સગા વાલા મિત્રો સૌનું હાર્દિક અભિનંદન સ્વાગત કરું છું. આજે ખુશીનો પ્રસંગ હોય તમે બધા જે મારા ભાઈએ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલ તમે બધા જે કિંમતી સમય આપેલ એનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મારો ડૉક્ટર બહેનો એને આપણે ખુશી અને સન્માન વિધિ કરવાની છે. પ્લીઝ વેલકમ ટુ ડૉક્ટર મોઇન ખાન. પ્લીઝ કમ ઓન મોઇન ટેસ્ટ. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think
think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उनको भी सलाम जो मुझे जलील किया करते थे। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इतना वक्त दिया और सब यहाँ पे आए, इसलिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के बारे में बोलूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम बोल नहीं पाया था इतना कुछ। तो कहते हैं कि सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन सबसे ऊपर टिकने के लिए माँ की दुआ लगती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरी मम्मी के लिए। मेरा और मम्मी का बॉन्ड ऐसा है कि पापा और मैं कभी बात नहीं करते इतनी, क्योंकि कुछ भी बात हो तो मैं पहले मम्मी को बोलता हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी मीडिएटर है। तो पहले मैं मम्मी को बोलता हूँ, फिर वो पापा को जाके बोलती है, उसके बाद सब बातें वगैरह होती है। क्योंकि डायरेक्ट मैं नहीं बोल पाता पापा को, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप बोलने पे मुंह बंद होता है और माँ बोलने पे मुंह खुलता है। इसकी वजह से मैं जो भी बात होती है पहले मम्मी को बोलता हूँ। और सबसे कहते हैं कि साइलेंट सेक्रीफाइस जो किया है वो मेरी मम्मी ने किया है, क्योंकि पापा तो दुकान पे जाते हैं, काम करते हैं, तो सबको दिखता है कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 6-7 साल से मेरी मम्मी घर पे ही जो इतना सेक्रीफाइस करके एक ही जगह पे बैठ के वेट करना कि कल मेरा बेटा डॉक्टर बन के आएगा, कल आएगा। और जब मैंने घर छोड़ा था, क्योंकि जब घर पे होते हैं तो क्या होता है कि सब कुछ चीज़ें, हर चीज़ घर पे बैठे बैठे मिल जाती है। तो जब घर पे बैठे थे तो सब कुछ टेबल पे मिल जाता है, खाना हो कुछ भी हो, एक बार बोलना पड़ता है कि मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, सब कुछ टेबल पे आ जाता है। तो जब मैंने घर छोड़ा था तब मुझे इतना पता नहीं था कि कैसा होगा क्या होगा। जब घर छोड़ा, 1 साल रहा मैं बाहर रशिया में, तब मुझे समझ में आया कि घर की कीमत क्या होती है, माँ बाप की कीमत क्या होती है, सब समझ में आया। तो जब मैं रशिया गया, 1 साल रहा वहाँ पे, तब मुझे एक बात समझ में आई। एक शेर है जो जाकिर खान कहता है, मैं बहुत मानता हूँ जाकिर खान को, क्योंकि वो जो भी बोलता है मतलब बहुत रिलेट करता है। तो उसका एक शेर है, कहता है कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गया, सुकून आंखों के सामने था मुंह मोड़ के आ गया, खजाने लूट रहे थे माँ बाप की छाव में, मैं कौड़ियों के खातिर घर छोड़ के आ गया। आज 6 साल हो गए, अभी मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, पर जो 6 साल में मेरे माँ बाप से, मेरे घर से, मेरे परिवार से जो दूर रहा हूँ मैं, वो मैं कितने भी पैसे कमा लूँ वो कभी वापस नहीं आ सकता। और वो सारी चीज़ें इसके पौड़ियों के बराबर है। ये सारी मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, वो टाइम जो गया है, जो हर एक पल, हर एक त्यौहार जो मेरे माँ बाप के बिना, मेरे घर में, मेरे परिवार के बिना गया है, वो कभी वापस नहीं आ सकता।
तो वो सब कौड़ियों के बराबर है मेरे लिए। और मेरे घर में जो ईद होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन दुकान मेरी बंद रहती है, बाकी 24 घंटे चालू रहती है। तो ईद के दिन सिर्फ हम सारे घर वाले एक साथ मिलके नमाज के लिए जाते हैं, फिर आते हैं घर पे, खाना वगैरह खाते हैं, सब साथ में बैठते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो 6 साल में मैं अपने घर से दूर रहा, तो वो टाइम कभी मेरे लिए आएगा नहीं वापस, क्योंकि वो जो मैंने इतना टाइम लगाया इसमें वो कभी वापस ही नहीं आ सकता। शायद मैं कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊँ, कितने भी पैसे कमा लूँ, तो वो कभी वो चीज़ कभी वापस आएगी नहीं। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, वो घर से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना। और एक शेर है ना कि नमाज पढ़ के खड़ा हुआ हूँ, कोई अपना मिल जाए तो गले लगा लूँ। मैं नमाज पढ़ के खड़ा हुआ हूँ, कोई अपना मिल जाए तो गले लगा लूँ। खुशी की बात यह है कि घर से फोन आया है, और दुख की बात यह है कि खैरियत बताना है। और जब मैंने रशिया में एमपीएस खत्म किया, उसके बाद मैं दिल्ली आया प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे रशिया में तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी, पर वहाँ पे रूम में हीटर वगैरह रहते थे। तो जब मैं दिल्ली में आया, वहाँ पे रुका 6 महीने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो एक पापा जितने मतलब पैसे इतने लग चुके थे, इतने सारे पैसे लग गए थे। अभी मेरा मानना है, जब मैं दिल्ली में रुका तो वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए रुका, वहाँ पे 6 महीने रुका मैं। उसके बाद वहाँ पे इतनी ठंड रहती थी वहाँ पे, क्योंकि हीटर नहीं रहता था रूम में। जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ पे, तो ठंड की वजह से इतनी ठंड रहती थी कि मैं पूरा जीन्स का पैंट पहन के, ऊपर शर्ट, उसके ऊपर हुडी और उसके ऊपर पूरा जैकेट पहन के उसके बाद पढ़ने के लिए बैठता था वहाँ पे। तो कभी ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है ये, क्या है। पर एक माइंड में एक सेट हो गया था कि मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है, बड़े पापा ने इतनी मेहनत की है, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ। खाना अगर मिल रहा है तो खा रहा हूँ, सोना मिल रहा है तो सो रहा हूँ। और वहाँ पे ऐसा टाइम हो गया था ना, क्योंकि लड़के का क्या होता है कि एक टाइम के बाद घर से पैसे मांगने में शर्म आती है। लड़कों का ऐसा होता है, नहीं बोल पाते लड़के, कितने भी प्रॉब्लम हो घर से पूछते हैं कि पैसे चाहिए, बेटा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं हमेशा कहता था पापा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। वो बोलते थे पैसे चाहिए, नहीं पापा पैसे नहीं चाहिए, इतने चल जाएगा। तो पापा जितने पैसे भेजते थे जब मैं दिल्ली में था, तो उतने पैसे हो नहीं पा रहे थे। पर पापा को मैंने बोला था कि नहीं पापा सब सही चल रहा है, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो जो पैसे भेज रहे थे पापा, उसमें रहने का और खाने का बस एक टाइम का हो रहा था। तो पर मैंने पापा को कभी बोला नहीं कि पापा मैं सिर्फ एक टाइम का खा रहा हूँ, आप मुझे ज़्यादा पैसे भेजो। अगर मैं बोलता पापा को तो वो 5 के बदले 10-15 हज़ार भेज सकते थे, पर मैं नहीं बोल पा रहा था उनको, क्योंकि मुझे पता था कि घर की क्या सिचुएशन और कैसे मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है, क्या सिचुएशन है, वो सब मेरे को पता था। तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। तो सिर्फ एक टाइम का खाना खा के सिर्फ मेरा ऐसा था कि 6 बजे उठता था मैं, ठंड थी वहाँ, 6 बजे उठता था, वज़ू करता था, उसके बाद फिर के बाद नमाज था। नमाज पढ़ने के बाद में टेबल 6-6:30 बजे बैठ जाता था, 6:30 से मैं 11:30 या 12 बजे खड़ा होता था। और 12:30 बजे खड़े होके मैं सिर्फ एक चाय और एक बिस्किट खा के फिर से पढ़ने के लिए जाता था। मैं लंच नहीं करता था, स्किप कर दिया था मैंने, क्योंकि नहीं हो पा रहा था इतने पैसों में एक टाइम का। मैंने घर पे नहीं बोला था, मैंने घर पे बोला था कि हाँ सब पापा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ एक टाइम का मैं चाय और बिस्कुट खा के मैं निकाला हूँ दोपहर के टाइम पे। उसके बाद सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ जाता था, रात में खड़ा होता था, तो 16 से 17 घंटा तक मैं पढ़ता था। उसके बाद 6 महीने रहा मैं ऐसे ही। अगर तबीयत खराब हो गई फिर भी सेम शेड्यूल, नो चेंज, एक ही वही सेम शेड्यूल। 6 बजे उठना, 6:30 बजे टेबल पे बैठ जाना पढ़ने के लिए, फिर 11:30 बजे उठना। ऐसे में 4 से 5 घंटे सिर्फ सोता था और 17 से 18 घंटे पढ़ता था। और जब मैंने एग्ज़ाम दी, जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी, तब ये पता नहीं था कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, पिटिशन ये क्या होता है, पता नहीं था कुछ। पर जब खुद पे हुआ ये सब तब पता चला कि क्या होता है, क्योंकि हमेशा किताब नहीं पढ़ा था ऐसा कि ऐसा सब कुछ होता है। तो उसके बाद प्रिपरेशन की मैंने, एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम के 10 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी एक नंबर से मैं रह गया। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि यार कहाँ कमी रह गई मेरे से, कहीं मेरे को अगर खुदा मिले कहीं पे
तो मैं उनको पूछूं कि कहाँ कमी रह गई मेरे में जो आपने मुझे 1 नंबर से रुका दिया। 1 नंबर से मेरे क्योंकि एक मिनट की कीमत उसको पता है जिसकी अभी अभी बस निकली है, 1 दिन की कीमत उसको पता है जिसको अगले दिन फांसी मिलने वाली है, और 1 नंबर की कीमत उसको पता है जिसको 6 महीने और 1 साल तक रुकना है। तो उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया, मतलब 16-17 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो इससे मतलब और क्या हो सकता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। और साथ में रहने वाले इतने लोग थे मेरे साथ में, ऐसे लोग थे मेरे साथ में, ऐसे लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, रंग बदले, इतना हो रहा था, मतलब ऐसे समझ में आ रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। और जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ पापा, आप बड़े पापा बोल रहे थे कि इसका ध्यान रखना कहीं ये गलत स्टेप ना ले ले, तो मैं आपको बता दूं मेरे दिमाग में एक भी बार नहीं आया कि मैं सुसाइड कर लूँ या फिर से कर लूँ। मेरे दिमाग में बस 3 सवाल थे कि पापा को फिर से 6 महीने काम करना पड़ेगा, मम्मी को 6 महीना फिर से वेट करना पड़ेगा, और 6 महीना मुझे फिर से घर से दूर रहना पड़ेगा। और ये जो 3 चीज़ है ये मौत से भी बहुत ख़राब चीज़ है, समझ रहे हो आप। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं ख़त्म हो गया, मैं मर जाऊँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि पापा को अभी 6 महीने और काम करने पड़ेंगे, मम्मी को और वेट करना पड़ेगा, मेरे को घर से दूर रहना पड़ेगा। और पापा एक भी दिन ऐसा नहीं गया, मैं जब आपसे दूर हुआ एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं रोया नहीं। मैं हमेशा आपको ऐसा बोलता था कि हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि नहीं हो सकता हैंडल किसी से। और वो टाइम ऐसा था घर पे कि सबके सब बहुत ही परेशान हो गए। उसके बाद ऐसे लोगों ने रंग बदले, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर लाइफ में एक मोमेंट आता है कि अब किताब बंद करनी है या पन्ना पलटना है। तो मैंने चूज किया पन्ना पलटते हैं इस बार, और पन्ना पलटा तो एक हरिराज बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनकी 2 लाइन है, वो कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है तो उसको ऊपर वाले के हिसाब से चल रहा है ऐसा मान के चलना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, मतलब मेरे मन का नहीं हो रहा है, मतलब ये थोड़ी अच्छी थोड़ी बात है। पर हमको बाद में समझ में आता है कि हाँ जो भी हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद मेरे साथ में ऐसे लोग थे जिन्होंने रंग बदला, क्योंकि दुनिया का ऐसा रूल है, अगर आपको ये शर्ट चाहिए आज, ये शर्ट अगर आपको चाहिए तो दुनिया इतनी हरामी है ना कि आज तो पक्का नहीं मिलेगी, आज पक्का नहीं मिलेगी। और हम सोच रहे थे कि यार ये शर्ट नहीं मिली, और फिर अगले दिन हमको पता चलता है कि ये शर्ट इतनी ज़रूरी थी भी नहीं, क्योंकि कोई बेहतर सूट हमारा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, अगर ये आज नहीं मिला तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अरे नहीं यार रुको ज़रा, अभी तो शुरुआत है। फिर जब मैंने उसके ऊपर एक शेर कहा है कि कहाँ गए इरफान, शेर कहा है कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो इसके बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू की, फिर से वही सेम चीज़ पढ़ा, मैंने एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे भी मैं मतलब इतना ऐसा हो गया था कि खुदा मैं 3 से 4 वक्त ही नमाज़ पढ़ता हूँ, 3 से 4 वक्त। मेरे हाथ में टैटू, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, डोंट जज बुक बाय कवर। मैं 3 से 4 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, और रो के बस यही दुआ मांगता था कि खुदा मेरे लिए नहीं पर मेरे माँ बाप के लिए मुझे कामयाब बना दे, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए मुझे कामयाब बना दे। बस 3 से 4 टाइम तक मैं रो के यही दुआ मांगता था कि मेरा मत सोच, मेरे माँ बाप अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बस उसके लिए सोच। मेरी माँ अभी भी वेट कर रही है कि कब मेरा बेटा डॉक्टर बन के आएगा, कब मेरा डॉक्टर बन के आएगा, ऐसा करके। तो जितने भी यंगस्टर है या फिर मेरे जूनियर है, मैं उनको यही 4 से 5 चीज़ें जो मैंने सीखी है पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि हाउ टू बिकम सक्सेस इन लाइफ, वॉट एवर फील्ड। 4 से 5 चीज़ों मैंने सीखी है। सब पहले कि पैसा वही है जो पास में है, अपने वही है जो साथ में है, बाकी सब बाद में है। दूसरी चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, हैव फेथ। हमें खुदा पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और हमेशा सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि डोंट टेक स्ट्रेस, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट।
कभी भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेना चाहिए, बस काम करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, उसके बाद आराम और वगैरह सब छोड़ दो। उसके बाद जो चौथी चीज़ मैंने सीखी है कि हमेशा मेहनत करना, बहुत मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देख लिया, हो जाएगा, क्योंकि धोखा लड़की देती है, मेहनत नहीं। ठीक है, धोखा लड़की देती है, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, ये अब आप याद रखना। इसलिए मेहनत करते रहना, मेहनत करना कभी मत छोड़ना। और जब कोई अगर पूछे मेरे से कि कॉलेज जाके क्या मिला तुम लोगों को, कॉलेज जाके मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मेरे दोस्त थे, मेरे सीनियर थे, हमेशा मुझे गाइड करते रहे। मेरा खुदा से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिव मी एवरीथिंग, गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह सबसे बड़ा है। और मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग मिले मुझे, मेरे दोस्त मिले, मेरे सीनियर मिले, जो हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे, मेरे हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया, हर चीज़ में कभी भी मेरे को अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसे अच्छे दोस्त मिले, सीनियर मिले, जो हमेशा मुझे गाइड करते रहे। और हमारी फैमिली में 2 लोग और बढ़ गए, एक तो अशरफ भाई एंड फैजल भाई, जो नहीं आ पाए, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है मुझे। और घर में सब लोगों का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना सपोर्ट किया मेरे। और घर में सारे सब लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और बर्बादी के भी औरत का ही हाथ होता है। ठीक है, हाँ, ऐसा मत समझो कि सिर्फ कामयाबी में होता है, बर्बादी में भी औरत का ही हाथ होता है। तो मेरे घर में भी मेरी मम्मी का, मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मम्मी का, मेरी बहनों का, दोनों बहनों का और दादी का और पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है मेरी कामयाबी के पीछे। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पे आज खड़ा होकर नहीं बोल पाता। वो मेरे पीछे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, यहाँ तक मुझे पहुँचाया। इसकी वजह से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ ऐसे। मेरे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, इतना मुझे सपोर्ट किया, उनकी वजह से, उनकी बिना ये कुछ नहीं हो सकता था मेरी लाइफ में। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े पापा का, क्योंकि हमेशा ना हैव ड्रीम बिग एंड मेक इट पॉसिबल। क्योंकि 5 साल तक मैं जब गांव से साइकिल लेके आता था, मैंने कभी नहीं सोचा कि यार क्या होगा मेरे पास में। हर रोज़ 5 से 6 साल तक मैं साइकिल चला के रोज़ 15 किलोमीटर साइकिल चला के आता था। मेरे पापा, बड़े पापा, वो 40 साल से 24 घंटे तक काम कर रहे हैं। उनको कभी पता नहीं था कि क्या होगा, क्या कर रहे हैं, पर उनकी जो मेहनत का फल है वो आज यहाँ पे मिल गया है, आपको आपके सामने खड़ा हूँ। और मुझे एक बात पता है, जब मैं सेकंड ईयर में था तब पापा से मैं बात कर रहा था। आई रिमेंबर एग्जैक्ट वर्ड। पापा ने मुझे बोला, मैंने पूछा, वो डॉक्यूमेंट क्या कर रहे थे, कुछ एजुकेशन लोन लेनी थी, तो उसके डॉक्यूमेंट क्या कर रहे थे। तो उन्होंने फाइल बनाई थी, तो वो फाइल लेके उसके पास गए। मैं पापा से बात कर रहा था कि पापा वो क्या हुआ डॉक्यूमेंट का। तो पापा ने बोला कि बेटा इतने साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने इतना नाम किया, इज्जत कमाई हमने, पर अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की जो फाइल थी वो जिसके पास लेके गए थे पापा, तो पापा ने कुछ पूछा उसको, तो उसने सीधी फाइल को ऐसे टेबल पे फेंकी कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, तुमको कुछ पता नहीं होता, तुम चाहे बेचते हो, तुमको कुछ पता नहीं होता। मैं उनको यही कहूँगा, उन्होंने कहा कि तुम चाय बेच लो, तुमको कुछ पता नहीं, ख़त्म होने वाला है। तब वीडियो वायरल हुआ था ना वो, कि ऐसे ऐसे चाय में वो बर्तन धो रहा है, वो गंदे पानी से बर्तन धो रहा है, याद है ना वो, गंदे पानी से बर्तन धो रहा है। ठीक है ना, अभी आएगी, सबकी बारी आएगी, ठीक है ना, सबका कह के लेंगे अपन। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो उसके ऊपर शेयर कहा है मैंने, वो बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतने देर तक खड़ा रहा वहाँ पे कि कब वो बर्तन लेके वहाँ पे आए। फिर उसने इतनी माइंड इतना यूज़ किया उसने कि हम इसको कैसे गिरा है, इसको हम कैसे नीचा दिखाए। तो उसके ऊपर शेर कहा है मैंने, 2-4 लाइन कही है मैंने। वो कहा है कि समंदर खंगालने में लगे हुए लोग, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए लोग। समंदर इतना बहुत बड़ा होता है, अगर उसमें कोई छोटी सी चीज़ भी अगर गिर जाए तो उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही कहा है कि समंदर खंगालने में लगे हुए लोग, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। अरे ये वो लोग हैं जिनकी लंगोट तक फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं।
और स्पेशल थैंक मैं कहूँगा अपने भाई को, सादिक को और अंकल को, जिन्होंने ये पूरा मैनेजमेंट किया। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा ये सब कुछ। बहुत ही बढ़िया खाना पीना, स्टेज वगैरह सब कुछ जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही काफ़ी अच्छा हुआ। आप सब मिले यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हैं, जितने भी जिन्होंने भी इतना सपोर्ट किया है, उनकी 4 लाइन में कहूँगा। जितने भी मेरे चाहने वालों हैं, इतना मेरे को प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, IP, तो 4 लाइन की है मैंने कि गम का समंदर मिले तो डूब मत जाना, गम का समंदर मिले तो डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना, और ज़िंदगी के सफ़र में अगर अकेले पड़ जाओ तो ये बंदा अभी जिंदा, ये बात कभी भूल मत जाना। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने इतना टाइम दिया, आपने इतना प्यार दिया मुझे। और मैं थैंक यू सो मच। और अपने बड़े पापा को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, वो 10 शब्द बोलेंगे। प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे बड़े पापा कबीर भाई। અને મારા મિત્રો એ બધા રહ્યા છે। હવે તમે લોકો બધા તમારો જિંદગી ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છો, બદલ તમારો સૌનો આભાર। મારા સગાવાળા આભાર, અને મારો છોકરો જે ડૉક્ટર બની ગયો ગરીબ તોના કરમથી, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અલ્લાહનો લાખ લાખ શુક્ર। अभी मैं અને એક બીજી વાત તમને કહું ભાઈઓ, કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જો હિંમત હોય અને નક્કી કર્યું હોય કે મારા ડૉક્ટર બનવું છે કે મારા કામ કરવું છે, તો તમારે અંદર એક જذ્બો જગાવવો પડે અને બની શકે। જેમ કે મારા છોકરા આજે બને અમને બતાવ્યું, છોકરો બહારગામ ગયો આજથી 6 વર્ષ પહેલાં ભણવા માટે, ત્યારે 1 વર્ષ હું એને વાત નથી કરી શક્યો, 1 વર્ષ સુધી મેં એને વાત નથી કરી। પણ હવે જ્યારે વધારે હિંમત આપતો, પપ્પા એ કે મોટા બાપુ પીવામાં મને કાંઈ નહીં થાય, હું એકલો રહીશ, ગમે રીતે ભણીને તમને કરું, પછી તમારા પૈસાનું વળતર આપીશ। અને ગરીબમાં ગરમથી અલ્લાહને લાખ લાખ શુકર કે આજે અમને વળતર આપી દીધું, અને અમે જે લોકોને ચા બનાવીને પાઈ છે વસૂલ કરી દીધું, અલ્લાહનો લાખ લાખ શુકર। थैंक यू सो मच। अभी पापा को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द के ऐसे कैसे पापा। બધા પધારેલા મારા સગાવાના મિત્રો, અને આ મારો છોકરો જે ડૉક્ટર બની ગયો, કુદરતે ખૂબ ખૂબ આભાર। જે આ બધા બેટાને સાથ સપોર્ટ આપ્યો, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। જે बात करने से पहले बाप से बात करो। थैंक यू सो मच। और अंकल को मैं बोलूँगा, ऑब्वियसली ऐसे कैसे हो सकता है, अंकल रह जाए। 2 शब्द, 2 मीठे बोल प्यार के। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे अंकल के लिए। અહીંયા પધારેલા બધા અમારા વાલા મિત્રો, સ્નેહિતોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તમારો કિંમતી ટાઈમ કાઢીને જે અમારા ફેમિલી ફંક્શનમાં તમે બધા પધાર્યા છો, તમારો કિંમતી ટાઈમ કાઢીને જે પધાર્યા છો એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। અમે અમારા જે ગામના લોકોને જે ચા ના રકાવી, જે કોઈ જે અમારા છોકરાને મોટો કરી ભણ્યો છે, ડૉક્ટર બન્યો છે, એમને જે કલ્પના હતી, જે અમારું સ્વપ્ન હતું, એ અમારા છોકરાએ પૂરું કર્યું છે। અને તમે લોકો ફેમિલીવાળા જે સપોર્ટ કર્યો છે, સગાવાળા જે સપોર્ટ કર્યો છે, એવા બધા લોકોએ ખૂબ ખૂબ એનો આભાર માનીએ છીએ। અને અમારું જે કાંઈ સ્વપ્ન હતું એમને એમ હતું કે અમારો છોકરો બહાર જઈને ખોટો બગડી જશે, કે કોઈ ખોટા રવાડા ચડી જશે। ઘણા દાખલા મેં મારી લાઈફમાં જોયેલા છે કે છોકરાઓ સિગરેટ લો મને ડ્રિંક કરતા હોય, તો કોઈ દિવસ મારા ભત્રીજાને કે મારા ભાઈ સરદારભાઈને ખાણાનું પણ વ્યસન નથી, કે કોઈ પણ જાતનું ક્યારે ખરાબ છોકરામાં કોઈ ફરિયાદ આવી નથી કે મોયના રીતે ખરાબ વર્તન કરે છે, કોઈ પણ જાતનું ક્યારે। અમને ગર્વ છે મારા છોકરા ઉપર। અને તમે જ્યાં પધાર્યા છો ટાઈમ કરીને, તમારો ખૂબ ખૂબ ફરીથી હું ધન્યવાદ કરું છું। यहाँ अंकल ने जो बोला उसी बात पे बोल देता हूँ कि जब मैं रशिया गया था तब मेरे पापा ने मुझे एक नोट लिख के दिया था। उसमें लिखा था, उसमें मम्मी को और पापा को दोनों ने लिखा था। उसमें लिखा था कि बेटा अपने आप को कभी अकेला मत समझना, खुदा हमेशा तुम्हारे साथ है, और हवा पानी ये साबित है कि खुदा तुम्हारे साथ है। और पापा ने मुझे बोला था कि बेटा कभी भी सिगरेट और शराब से दूर रहना, नशा कभी मत करना,
एंड मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि 6 साल में रहा रशिया में, ना मैंने कभी सिगरेट पी ना कभी दारू पिया, ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ ये चीज़। थैंक यू। આજે છોકરાએ અત્યારે વાત કરી એ અમે અહેમદ બાપુ રીલિયાવાળાને મળવા ગયા ત્યારે છોકરાએ કીધું તો બાપુએ ખાલી મસ્કરીમાં કીધું મારી આમ આજ મારી ગયેલા પેલા બીડી પી ત્યારે છોકરાએ એમ કીધું અમને કોઈને કીધું નહોતું પણ જ્યારે બાપુની સામે અમે બેઠા હતા ને ત્યારે છોકરાએ કીધું કે બાપુ આ બીડી તો હું પણ હું જે જગ્યાએ રહેતો હતો એ જગ્યાએ મારી રૂમની સામે ખાલી વચમાં એક નાની એવી ગલી હતી ત્યાં તમામ વસ્તુ મળતી હતી શરાબે મળતો હતો પણ મેં આજની તારીખમાં મારા પપ્પાએ મને કીધું હતું મારા મોટા પપ્પાએ કીધું હતું એ પ્રમાણે હું રહ્યો છું અને દાદા બાપુએ મને જે કીધું હતું એ પ્રમાણે દાદા બાપુનો હું રોજ વાંચન કરતો હતો અને મેં કોઈ પણ વસ્તુ એના રીતે નથી કહેવા સમ ખાઈ લઉં જેથી કે મને ગર્વ થઈ ગયો કે નહીં મારો છોકરો બાકી મરદ નીકળ્યો જે મને બીક હતી એને અમને કરી બતાવ્યું એ મને ગર્વ થયો ત્યારે અમને એને વાત કરી બાકી કોઈ અમને ઘરે વાત નહોતી કરી આ તો ખાલી અમર બાપુની સામે મસ્તીમાં મને જાણવા મળ્યું અને બહુ સારી વાત કહેવાય એટલે એને લાખ સારી બુદ્ધિ આપી કહેવાય। हेलो, तो दो बातें अभी बाकी रह गई जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अभी घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। और दूसरी 2 लाइन लास्ट में बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त पे छोड़ा था, जिसने मुझे छोड़ा था, तो कहा है कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया। कहा है कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, देख तूने मुझे छोड़ा और मैं कहाँ आ गया। कहा है कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया। कहा है कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, देख तूने मुझे छोड़ा और मैं कहाँ आ गया। थैंक यू सो मच आप सबका। मैं बिल को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे भाई तो रह गया, एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे भाई के लिए, शादी के लिए, शादी चौहान, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शादी भाई, समीर भाई चौहान। 2 शब्द शादी भाई, ऐसे कैसे? आइए स्टेज पे आइए। शादी प्लीज ब्रो, डोंट डू दिस। शाहरुख भाई आगे जाओ। खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो भाई है वो दोस्त के बराबर है। मेरे कभी भी ऐसा हुआ नहीं मेरे घर में कि मैं भाई के साथ रह रहा हूँ, हमेशा मेरे को ऐसा ही लगा कि मैं दोस्त के साथ रह रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ऐसे भाई है, बड़ा भी छोटा भाई भी। और इससे खुशी की बात ये, बड़ा भाई होने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी बाहर घूमने जाओ कभी पैसे नहीं देने पड़ते। જે કાંઈ આયોજન કર્યું છે ફક્ત મને એ જ બીક હતી કે મારા ભાઈને ગમશે કે નહીં, પણ મને આજે ગર્વ છે કે મેં જે કાંઈ આયોજન કર્યું એ મારી મહેનત મને વસૂલ પડી છે। थैंक यू सो मच शादी। अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से पे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, जो पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए। नखरे वखरे
ना दिखाए शर्म तो करते बाय बाय माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे हम हैं बेटे हम बाकी सारे पानी कम हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम मस्ती है माहौल में छाई एक खुमारी है सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है अरे पंगा तो कोई शुरू करे अपनी भी गरारी है जुम्मी चूकी नोक पर रखी दुनिया सारी है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए हमने मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है हुनर है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए मुकाबला कैसे हम करते हैं तरीका हम बताएंगे कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार अब की बार तरीका हम बताएंगे यार कर दे जो इशारा दिल में दे दूं दोबारा यार कर दे जो इशारा दिल में दे दूं दोबारा यार का नशा ऐसा है चढ़ा कि यूं फिदा दुश्मन गले लग जाए तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इश्क से ऊंचा इश्क से बढ़कर इश्क से अच्छा इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लगे दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना। रहना बन के दिल, दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तू मिल, सबका है ये कहना कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ इश्क से उम्दा, कुछ इश्क से ऐसा, कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं। इश्क से मीठा, कुछ इश्क से गहरा, कुछ इश्क से ताजा, कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं। इंसान है इंसान जग में जब तक इश्क सलामत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई,